Dear students, this is Imran Kazmi, and here is your lecture 9 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we were working on loops. We have completed three types of loops: while loop, for loop, and do while loop. We have also worked on nested loops. Today, we are going to start our new topic, that is array. In this lecture, we will work on array, definition and introduction of array, and how to work with arrays. How we assign values, how we input values, how we use values, and how we refer values of the array, and some programming practices of arrays. We have a program int x equal to 2, x equal to 4, x equal to 6, x equal to 8. Before discussing array, let's discuss this simple code. If we have a variable x and the value of x is 2, then we assign a new value, that is 4. Then we assign another value, that is 6, and we assign another value, that is 8, and then we display the value of x. What value would be displayed? The most recent value of the variable would be displayed, because a variable can have or can carry only one value. It cannot store more than one value at the same time. Only one value is stored in a single variable. So in this code, we have a variable x and we assigned 4 values to the variable x, but the most recent value that is stored to x would be present at this time. So when we will display at the end, we will display the value of x. The most recent value of x will be displayed, and that is 8. So keep in mind that a single variable can store only one value at a time. It cannot store more than one value at a time. So in this situation, if we need a variable and we want to store more than one values, for example, if we want to store the roll number of the class, so if a class is of 60 students and the roll number 60 are different from each other, so we will need 60 variables to store the roll number of each student. It cannot be stored in a single variable. So it would be quite difficult to declare 60 variables. ये मुश्किल हो जाता है कि आप एक वेरिएबल में चूंकि एक वैल्यू स्टोर होनी है, और अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवानी है, जैसे मैंने कहा कि 60 वेरिएबल्स आपको चाहिए होंगे, तो ये सिंपल वेरिएबल से ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं किया जा सकता व्हेन यू नीड मोर देन वन वैल्यूज़ टू स्टोर. सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी नीड अरेज. व्हाट इज अरे? Array is a finite collection of similar data items. By similar, we mean that all data items must have the same type. So first of all, array is simply a collection. Collection means it is a combination of more than one values. Secondly, it's a finite collection. Finite collection means that it is not unlimited. Rather, it is a limited collection. It is has some end. There is no infinite situation in arrays. Every collection must be some finite number of elements. And by similar, we mean that in this collection, all data items have the same type. You cannot have different types of data in this collection. For example, if you have an array of 10 values and the 10 values must be of same type, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें 5 वैल्यूज़ जो है वो आप इंटीजर रख दें और 5 वैल्यूज़ फ्लोट रख दें, या उसमें 3 वैल्यूज़ फ्लोट रख दें, 4 वैल्यूज़ जो है वो आप इंटीजर रख दें, और 2-4 वैल्यूज़ आप उसमें जो है वो करैक्टर रख दें. ऐसा आप नहीं कर सकते. अगर आपने एक अरे जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए डिक्लेयर किया है, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी
वो सारी की सारी इंटीजर्स होंगी। और अगर आपने एक अरे फ्लोट वैल्यू के लिए जो है वो डिक्लेयर किया है तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो फ्लोट होंगी। और अगर कोई अरे करैक्टर आपने डिक्लेयर किया है तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो करैक्टर होंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी आप अरे डिक्लेयर करें इंटीजर के लिए और उसमें वैल्यूज़ जो है वो आप फ्लोट भी दे दें और करैक्टर भी दे दें, ऐसा नहीं है। This is a collection of similar data items, mean all the data items that would be present in this collection would have the same type. You cannot change the type. Mixture of types is not available in array. Rather, a same type of data is required in the array. If it is declared as integer, all the values present in the array would be integer. If it is declared as float, all the values present in this collection would be float. If it is character, all the values present in this array are character. And there is not the situation like this that you can have unlimited collection. There must be some finite collection. Mean if you want a collection of 10 elements, then you must declare it as 10. You cannot say it as unlimited collection. सो आपने इसे जो है वो लिमिटेड रखना है। आपने इसका साइज़ पहले से बताना है कितनी वैल्यूज़ के लिए आपको अरे चाहिए, 10 के लिए चाहिए, 20 के लिए चाहिए, 100 के लिए चाहिए, 1000 के लिए चाहिए, वट एवर द नंबर इज़, but you must tell the size of the array before using that array. If you wouldn't do this, it would be a syntax error, because its prerequisite is to give the size of the array. You cannot do it as infinite size, rather the size must be finite. Here are some characteristics of arrays. Array variable can store more than one value at a time, where other variable can store one value at a time. So when you are talking about the term array, array is a variable that can store more than one value, while simple variable can store only one value. For example, in the previous example, here is a simple variable x equal to 2, x equal to 4, x equal to 6, x equal to 8. X can store only one value. Either it can store 2 or 4 or 6 or 8. It cannot store these four values. It will store only one value. As we have displayed the value of x at the end of this code, so the only last value would be displayed, because when we store 2, the next 4 value is overlapped on 2. The next 6 value is overlapped on 4. And when we have given it as 8, all the values are overlapped and the most recent value is present in x. So only one value would be present in x in a simple variable. But when we are talking about the term array, array can store more than one values, because array is a collection. Array collection, it is not a simple value. Collection mean more than one values. So whenever you use the term array, keep it in mind that array is a variable that can store more than one value at a time, where simple variable can store only one value at a time. Second characteristic, each data item of an array is called an element, and each element is unique and located in separate memory location. So listen, in this array, in this collection, each data item would be called as element, and each element would have a separate space, separate and unique space in memory. It would not be on a single location, rather the location of each element would be different from other element. So every element in the array would be present on different places in the memory. So therefore they would not overlap, and due to their different locations, they are at separate locations. Each element have different index number. So as I have stated earlier, each element is on separate location, and the location of each element would be referred as its index number. If first element is present on location 0 or index number 0, the second index number would be 1, the third index number would be 2, and in this way it goes up to n. So index number would represent the position of the element in the array. An array can be a single dimensional or multi-dimensional, and the number of subscript determine its dimension. So the second thing is,
As we have stated in this point, each element would be referred through its index number, and this index number would be known as its subscript. So when there is one subscript, it means that we are dealing with one dimensional array, and if we have two subscripts or more than two subscript, it means that we would be handling multi-dimensional array. So keep it in mind that for a single dimensional there would be only one subscript, and if there are more than one subscripts, it would be named as multi-dimensional array. So while confirming the dimension of the array, you have the option either it is with single subscript or multi subscript. So if it is if it is with single subscript, then it would be called as single dimension, and if the subscript are more than one, then it would be named as multi-dimensional array. Number of subscript is always start with 0. Yes, the index number or the subscript of the array would start with 0 rather than 1. So if we have the element 10, the first element would start from 0 and the last element would be present at 9th index number or 9th subscript. So always keep in mind that the element of the array start with 0 position rather than 1. Okay, got it dear students? फिर summarize कर देता हूँ. Array can store. Array is not a simple variable, it can store more than one value at a time, while simple variable can store only one value at a time. हर डाटा आइटम जो होगा अरे का उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होगी, और चूंकि वो डिफरेंट और यूनिक लोकेशन पे पड़ा होगा, इस वजह से एलिमेंट ओवरलैप नहीं करेंगे और वो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद रहेंगे. हर एलिमेंट का डिफरेंट इंडेक्स नंबर होगा और उस इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे उस एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा, रेफ़र किया जाएगा, और उस इंडेक्स नंबर को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं. एक अरे मल्टी सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है. इसकी सिंपल हमारे पास तरीकाकार ये है कि जी अगर किसी अरे के साथ सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर 1 हो तो वो सिंगल डायमेंशनल होगा, और अगर सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर 2 हो तो या 2 से ज़्यादा तो वो मल्टी डायमेंशनल में चला जाएगा. तो सिंपली याद रखें कि फॉर अ सिंगल डायमेंशनल वी वुड हैव ओनली वन सबस्क्रिप्ट, एंड फॉर मल्टी डायमेंशनल वी वुड हैव multi subscripts, multi index numbers. Number of subscript is always start with 0. सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर अरे में 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा. जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारा अरे 10 एलिमेंट का है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0th लोकेशन पे होगा और लास्ट एलिमेंट जो है वो 9th लोकेशन पे होगा. स्टोरेज ऑफ अरे अगर हम मेमोरी में डिस्कस करें तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हर एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन जो है वो डिफरेंट और यूनिक होती है. तो अगर हमारा 10 एलिमेंट का अरे है तो ये देखें कि उसका जो सबस्क्रिप्ट है, पहले का सबस्क्रिप्ट जो है वो 0 होगा. इस अरे का नाम लेट से सी है, तो इसका सबस्क्रिप्ट जो है वो हर एलिमेंट का वेरी कर रहा है. फर्स्ट एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट जो है वो 0 रखा गया, सेकेंड एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट 1 है, फिर 2 है. तो दीज आर द एलिमेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस. तो पहला जो एलिमेंट 24 है, इसकी लोकेशन, इसका सबस्क्रिप्ट बन रहा है 0 या इंडेक्स नंबर इसका 0 है. दूसरा एलिमेंट 59 है, तो इसका जो सबस्क्रिप्ट बन रहा है वो 1 बन रहा है. तीसरे का 35 बन रहा है, और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 10 एलिमेंट है तो लास्ट जो एलिमेंट होगा उसका सबस्क्रिप्ट जो है वो 9 बनेगा. तो चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो लास्ट जो है वो आपका n-1, अगर n 10 है तो लास्ट सबस्क्रिप्ट आपका 9 बनेगा. तो याद रखें कि जब भी हम अरे की बात करते हैं तो इसका कोई भी एलिमेंट इसके सबस्क्रिप्ट के बगैर, दिस इज़ द सबस्क्रिप्ट विद इन द ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर जो नंबर है ये सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. विदाउट सबस्क्रिप्ट आप अरे के किसी भी एलिमेंट को रेफ़र नहीं कर सकते. तो अरे का हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और चूंकि उसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो यूनिक है और डिफरेंट है, देयरफॉर वो ओवरलैप नहीं करेगा और वो सस्टेन करेगा, अलहदा से मेंटेन रहेगा. तो एट द सेम टाइम अरे जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो कैरी ऑन करने की सलाहियत रखता है.
जैसे मैंने अभी आपके सामने ये रखा है कि अरे अगर हमारे पास सी है तो इस सी अरे में जो है वो 10 वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं और ये 10 वैल्यूज़ जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगी, और क्योंकि ये सेपरेट मेमोरी लोकेशंस पे पड़ी हुई हैं। लेकिन याद रखें कि अरे सिंपल वेरिएबल नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन, और अरे का कोई भी एलिमेंट उसके सबस्क्रिप्ट के बगैर जो है वो रेफ़र नहीं किया जा सकता। सो देयर फॉर वी नीड टू हैव दीज ब्रेसेस and the number that is called subscript, and we would need three things like this: variable name, braces, and the subscript. Subscript will tell the position of the element or the index number जहाँ पे आपका एलिमेंट मौजूद है। तो अगर हम C0 करेंगे तो इसका मतलब होगा फर्स्ट एलिमेंट, C1 करेंगे तो इसका मतलब होगा सेकंड एलिमेंट, C2 करेंगे तो इसका मतलब होगा थर्ड एलिमेंट, और सिमिलरली C9 करेंगे तो इसका मतलब होगा 10th एलिमेंट ऑफ द अरे। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट, मेमोरी में वो चूँकि हर एलिमेंट की लोकेशन डिफरेंट है तो आप देख सकते हैं कि वो ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इस पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बगैर आप अरे के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। गॉट इट? ओके, here comes the declaration of an array. Array cannot be declared in a simple way. सिंपल वेरिएबल से इसकी डिक्लेरेशन स्लाइटली डिफरेंट होती है, और अरे को डिक्लेयर करने के लिए अब हमें जो है वो थोड़ा डिफरेंट जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जी अरे का नेम क्या है। लेट्स से कि अरे का नेम हमने एज रखा है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सिंपल वेरिएबल नेम रखते हैं। और उसके बाद उसकी टाइप, टाइप हमने इंट रखी है, और फिर ये ब्रेसेस, ये ब्रेसेस जो है ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो आपकी ये अरे के लिए मखसूस कर दी गई हैं। तो जब भी आपने अरे यूज़ करना होगा तो उसके लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, कोई और ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। तो इसमें जो है वो आपने उसका साइज़ बताना है कि आपको अरे जो है वो कितने एलिमेंट्स के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे साइज़ आप 10 बता देंगे तो इसका मतलब होगा कि अरे जो है वो आपको, या लिस्ट जो है वो 10 आइटम के लिए है, आप इसको 20 कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जी उसका साइज़ 20 है, और यू वुड हैव possibility to store 20 elements in that array. So it depends how much size you require depending upon the number of elements. If you need 100 elements, then put 100 over here. If you need 50 elements, then put 50 over here. If you need 10 elements, then put 10 over here. But the number must be here, because array is a finite collection, it is not an infinite collection. So due to its finite nature, you must have to tell the size of the array. Whatever, even if you need 1,000 element, declare it over as 1,000 size, but you cannot keep it as blank cannot be there, you should tell the size of the array. तो अगर हम इस अरे की बात करें, इस सिंपल एग्जांपल की, तो अरे का नाम एज है, और ये एज कैसे अरे बना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये इसको अरे का जो है ना वो एक मखसूस दे रही हैं, एक इंडिकेशन है इसकी कि जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो आएँ तो इस चीज़ से आपने ये चीज़ लेनी है कि ये जो वेरिएबल है ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक अरे वेरिएबल है, और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो कितने होंगे जी, उसकी कैपेसिटी आपने कितनी सेट की है, दैट इज़ 10, और फिर टाइप उसकी क्या रखी है, इंटीजर। इसका मतलब ये होगा कि इस एज अरे में 10 एलिमेंट्स की गुंजाइश है, और वो जो 10 एलिमेंट होंगे वो सब के सब इंटीजर होंगे, बिकॉज यू हैव टोल्ड कि अरे जो है वो ऐसा नहीं होता कि जी वो उसमें कुछ डाटा जो है वो इंटीजर हो और कुछ फ्लोट हो, रादर it must have the same type. So because of same type, if you have declared it as integer, then all 10 elements in the array age would be integer values. You cannot have 5 10, 5 float and 5 integer values, rather all the values of this array would be integer, because the same nature of the array cannot store mixture of data type. You have to store the same values, same data type values. So this declaration simply tells that the array
age would contain 10 elements of type integer. The declaration of array tells the compiler that the data type, name of the array, and size of the array, and for which element it occupies memory space. So this is the name of the array, this is the size of the array, and this is the type of the array. So this declaration is simply that age is an array, because this square bracket indicates that this is an array, and 10 elements in this array, and all the elements of this array would be integer. All the values would be the same data type of integer type. Array declaration. So array have some variation in declaration, like more than one array can be declared on a line. You can have multi declaration in this way. You can declare more than one array with a single line. Here int age 10, height 10, name 10. Here we have three arrays. Age is an array, height is an array, name is an array. Age has size 10, height has size 10, name has size 20. So all these three arrays, age, height and name, all these three arrays are of integer type, mean the values in these three arrays would be integer. So always keep in mind that this square bracket is an indication of array. So never use some other bracket instead of this square bracket for the use of array. Wherever there is square bracket, always keep it in mind that this would be the symbol of array. So here we have declared three arrays of integer type. Another example, mixed declaration of variable with declaration of array. You can have like this: int I, j, age and 10. Here I and j are simple variables and age is an array variable. How we can differentiate? Because with age we have square brackets and size. So this age is an array variable and I, j are simple variable, mean I and j would have only one values or keep only one values at a time, while age can store up to 10 values at a time. Array can be initialized in this way. Array को हम initialize कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा int a5 equal to curly bracket में आप elements बता दें 10, 20, 30, 100 and 5. साइज इसका 5 था, इसका मतलब यह है कि इसमें 5 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो सकती हैं. तो पहली वैल्यू इसमें जो आएगी दैट वुड बी 10, second value would be 20, third value would be 30, fourth 100 and fifth value would be 5. So 5 values can be stored in this array. तो अब चूंकि इनिशियलाइज आपने किया तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, ए ऑफ ज़ीरो. ए ऑफ ज़ीरो होगी आपकी 10, ए ऑफ 1 होगी आपकी 20, ए ऑफ 2 होगी जी 30, ए ऑफ 3 होगी 100, ए ऑफ 4 होगी 100 और ए ऑफ 3 होगी 100 और ए ऑफ 4 होगी 5. So your subscript would start from 0. The first element 10 would be present at 0 index number, then 1, then 2, then 3 and then 4. तो याद रखें कि जब आपने इनिशियलाइज किया तो अब यहाँ पे अगर आप साइज़ नहीं भी बताएंगे तो कंपाइलर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पहले ही आपने उसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता दिए हैं. तो जितने एलिमेंट्स आप उसे बता देंगे उतने के लिए वो अरे खुद ही जो है वो सेट कर देगा. तो इसलिए इस सूरत हाल में आप अगर इसका साइज़ आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे 5 नहीं भी लिखते तो ये उसको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ आइटम्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट खुद ही सेट कर देगा. लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इधर साइज़ जो है वो 6 लिख दें या 5 लिख दें और वैल्यूज़ इधर 6 दें. ऐसा नहीं होगा. या तो इसे ब्लैंक छोड़ें आप, या फिर यह है कि जितने इधर नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताए हैं आप उतनी वैल्यूज़ उधर स्टोर करें. अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है तो फिर भी ठीक है. अगर आपने सेम नंबर बता दिया है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है और इधर 5 एलिमेंट दिए हैं, इवन देन इट्स ओके. लेकिन ये एरर होगा कि आप इधर जो है वो 5 लिख दें और इधर जो है वो वैल्यू 6 दे दें. ऐसा आप नहीं करेंगे. या आप एग्जैक्ट नंबर लिखेंगे या फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे. ओके जी. एलिमेंट को रेफर कैसे करना.
फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन अरे एज कैन बी रेफर्ड एज, लेट्स से कि जी हमने फिफ्थ एलिमेंट की बात करनी है, तो चूंकि इंडेक्स नंबर जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो देखें अरे नेम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एज है, इंडेक्स नंबर हमारा क्या बनेगा 4 बनेगा। 4 किसके लिए? फिफ्थ एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से रेफ़र करेंगे एज ऑफ 4। ये एज ऑफ 4 जो होगा ये फिफ्थ एलिमेंट को रेफ़र कर रहा है। अगर आप एज ऑफ 0 लिखेंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ एज इज़ 1 देन इट वुड रिप्रेजेंट सेकंड एलिमेंट, and age 4 would represent fifth element of the array. So whenever you need to refer, keep in mind that index number start from 0. So when you have the number like fifth element, then the referred position would be as 4th because of its 0th index number. So for fifth element you would write it as age of 4. Okay. If we need to input or assign values to an array, so it is different from simple variable. In simple variable you can say like here आप सिंपल वेरिएबल को सिंपली इस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 8। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ जाए अरे को वैल्यू इनिशियलाइज करने की, तो अरे के लिए आपको उसकी लोकेशन बतानी जो है वो कंपलसरी है। उसका इंडेक्स नंबर के बगैर आप उसे वैल्यू असाइन या इनपुट नहीं कर सकते। आपने जब भी अरे का एलिमेंट रेफ़र करना है तो उसका इंडेक्स नंबर बताना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे 24 आपने असाइन करना था फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो आप बताएंगे कि सी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 0 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो ये इंडेक्स नंबर जो है दिस इज़ कंपलसरी। विदाउट इंडेक्स नंबर वो कभी भी आपके अरे एलिमेंट को जो है वो रेफ़र नहीं करेगा। सो इफ़ यू हैव C1 देन द सेकंड पोजीशन C2। सो इन दिस वे अगर आपको जो है वो इस तरह से 10 एलिमेंट्स जो है वो असाइन करवाने हैं, तो 10 एलिमेंट्स असाइन कराने के लिए आपने फर्स्ट में C0 इक्वल टू 24 लिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 24 जो है वो उसके 0th पोजीशन पे चला जाएगा। दैन C1 इक्वल टू 59, देन 59 वुड गो ऑन द next second position, then 35 on the next position. So in this way the process goes on, and the last value would be C9 and C9 would be over here, और जो भी वैल्यू आप इसे असाइन करेंगे। तो याद रखें कि जब भी वैल्यूज अरे की आप बात कर रहे हो, अरे एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो अरे एलिमेंट विदाउट इट्स सबस्क्रिप्ट, विदाउट इट्स पोजीशन, विदाउट इट्स इंडेक्स नंबर। अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करूं या सबस्क्रिप्ट की बात करूं, तो इसका मतलब यही होगा कि उसकी पोजीशन अरे में कौन सी बन रही है। तो याद रखें कि विदाउट सबस्क्रिप्ट या विदाउट इंडेक्स नंबर आप अरे में एलिमेंट ना ही असाइन कर सकते हैं, ना ही इनपुट कर सकते हैं, ना ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब भी आपने एलिमेंट असाइन करना हो, इनपुट करना हो, प्रोसेस करना हो, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बतानी ज़रूरी है और ये पोजीशन बतानी भी ज़रूरी है। विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट या पोजीशन आप अरे एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो चूँकि सबस्क्रिप्ट की कंपल्शन है, इसलिए सम टाइम अरे को हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं। तो जिस तरह से एक सिंपल वेरिएबल होता है, तो अगर सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल की बात की जाए तो इसका मतलब होगा यू आर टॉकिंग अबाउट द टर्म अरे। अरे वुड बी नेम्ड और सम टाइम कॉल्ड एज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। ओके जी, बात समझ आ गई है कि इसकी पोजीशन बतानी ज़रूरी है, जो पोजीशन बताए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा डाटा जो है वो ज़ीरो से इनपुट करना शुरू करना है। आपकी लोकेशन स्टार्ट हो जाती है ज़ीरो से, लेकिन आप रेफ़र जब भी करने लगें तो आप हो सकता है कि आप पहले जो है वो C1 को वैल्यू दे दें, फिर C2 को दे दें, फिर बाद में C0 को दें। तो बिकॉज ऑल वैल्यूज़ आर प्रेजेंट एट सम डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, तो लोकेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसे सीक्वेंस में ही एक्सेस करना है। ऐसा सीक्वेंस की कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन उसमें जो सबस्क्रिप्ट की पोजीशन है वो बतानी ज़रूरी है। सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता। आप वैल्यूज़ 9 to 0 भी स्टोर कर सकते हैं, 0 to 9 भी स्टोर कर सकते हैं, रैंडमली भी स्टोर कर सकते हैं। जो भी पोजीशन उसे बताएंगे वो उसमें स्टोर कर देगा। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप हमेशा अरे को जो है वो ज़ीरो से
स्टार्ट करके 9 तक लेके जाएंगे वैल्यू स्टोर करने के लिए। वैल्यूज़ आप रैंडमली उसमें स्टोर कर सकते हैं, बस ये याद रखें कि उसका सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अभी मैं वैल्यू 0 से 9 तक स्टोर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं 9 to 0 भी स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन यह है कि सबस्क्रिप्ट को ओवरलैप ना करें। आप अगर C0 कहेंगे 24, फिर C0 कहेंगे 59, तो फिर C0 कहेंगे 35, तो फिर C0 पे आपने तीनों वैल्यू स्टोर कर दी। तो आपको करना यह है कि जब भी कोई नई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका सबस्क्रिप्ट चेंज करना है। अगर पहली वैल्यू C0 पे की है तो दूसरी वैल्यू आप C1 पे करेंगे, तीसरी वैल्यू आप C2 पे करेंगे। तो हर दफ़ा नई वैल्यू के लिए उसका सबस्क्रिप्ट जो है वो चेंज करना ज़रूरी है। इस तरह से वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा और वैल्यूज़ जो है वो आपकी प्रेजेंट रहेंगी। ओके, यूजिंग एन अरे अगेन, अगर हमें जो है वो 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने इस तरह से स्टोर की। तो देखें ये 3 वैल्यू स्टोर की, अगर 10 भी करनी हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। बट जस्ट इमेजिन कि अगर हमें जो है वो 100 वैल्यू स्टोर करनी हो, 200 वैल्यू स्टोर करनी हो, तो क्या हम इस तरीके से एक एक वैल्यू इस तरह से सेट कर सकते हैं कि जी C(1), C(2), C(3), C(4), C(5), C(6), C(7)? ये तो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हम क्या करेंगे कि हम एलिमेंट्स को असाइन करने के लिए या इनपुट करने के लिए ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, रादर वो यूज़ लूप। लूप के ज़रिए हम सबस्क्रिप्ट की पोजीशन को सेट करेंगे। जैसे हमने अरे डिक्लेयर किया एज 10 एलिमेंट्स का, तो इसमें लूप जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, हमारी लेसर दैन 10 तक जाएगी I प्लस प्लस। इसका मतलब यह है कि I would start from 0 and would go up to 9 with one increment. So the first element that would be enter age, seen age I, the value of I would be 0. So the first element that would be enter would be on age 0. Then I as varies from 0 to 9. So next time I would become, this I is subscript over here. Next time I would become 1, then 2, then 3, then 4. As loop goes on, the value of I varies, and every time in this array I mean a different index number, different subscript. So as I would change with the loop, the first cycle the value of I is 0, the first element would be enter on age 0. In the second cycle the value of I is 1. Over here I would become 1 and the second element would be entered. Then I would become 2, so third element would be entered. Because over here I varies and the position or subscript also varies, so in this way the first element would be age 0, then age 1, then age 2, then age 3 up to age 9. So in this way अगर हमारे पास 100 वैल्यूज़ भी होंगी तो हम 0 से लेसर देन 100 या 99 तक लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे देखें पहली वैल्यू एज ऑफ 0 बन जाएगी, फिर एज ऑफ 1 होगी, फिर एज ऑफ 2 होगी, फिर एज ऑफ 3 होगी। इस तरह से एज का जो सबस्क्रिप्ट आई है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी लूप के साइकिल के साथ, तो हमारी वैल्यूज़ जो इनपुट होती रहेंगी। तो बजाय इसके कि हम इस मेथड के ज़रिए एक एक वैल्यू इस तरह से असाइन करें, हमारे पास ये बेटर चॉइस है कि हम लूप लगाएं और लूप में जो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है उस पर लूप को सेट करें। जब हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल पे लूप को सेट करेंगे तो सबस्क्रिप्ट जो है वो हमारा लूप के साथ चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 0 है, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है तो पहला एलिमेंट एज ऑफ 0 इनपुट हो जाएगा, फिर एज ऑफ 1, फिर एज ऑफ 2, फिर एज ऑफ 3। इन दिस वे आई वेरी करता रहेगा और पोजीशन हमारी एज की चेंज होती रहेगी और नई वैल्यूज जो है वो हमारी डिफरेंट पोजीशन पे जाती रहेगी। तो बजाय इसके कि हम एक एक वैल्यू असाइन करें, हम लूप लगा के अरे में वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करेंगे। इस तरह से ये होगा कि अगर 10 वैल्यूज़ हैं, 100 वैल्यूज़ हैं या 1000 वैल्यूज़ हैं, तो कोडिंग हमें जो है ना वो लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, हमें जस्ट लूप का नंबर चेंज करना है और हमारी वैल्यूज़ इनपुट हो जाएंगी। तो अगर हमारे पास 100 वैल्यूज़ अरे में इनपुट करनी होती तो हम 0 से 99 तक करते। अगर हमारे पास 10 है तो 0 से 9 तक ही है। अगर हमारे पास 1000 होती तो 0 से 900 और 99 तक जाते। तो लूप लगा के हम अरे में वैल्यूज़ जो है वो आसानी के साथ इनपुट कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर हम ये चाह रहे हैं कि अरे सारे को जो है वो हम ज़ीरो पे इनिशियलाइज कर लें, तो हम इस तरीके से लूप लगा के ये काम कर सकते हैं कि जी हम 0 से लेके 9 तक या लेसर दैन 10 तक लूप चलाएं। तो फर्स्ट वैल्यू ओवर हेयर वुड बी एज एज ऑफ ज़ीरो, उसको भी वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी, एज ऑफ 1 को भी वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी, एज ऑफ 2 को भी वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस लूप में हमने एज ऑफ ज़ीरो, एज ऑफ 1, एज ऑफ 2, एज ऑफ 3, एज ऑफ 4, आई चूँकि वेरी कर रहा है ना लूप के साथ, तो आई की वैल्यू जब भी चेंज होती है तो सबस्क्रिप्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो एज ऑफ 0 पे भी 0 सेट हो गया, एज ऑफ 1 पे भी 0 सेट हो गया, एज ऑफ 2 पे भी 0 सेट हो गया, एज ऑफ 3 पे भी। इस तरह से हमने 0 से 9 उसके पूरे अरे में हमने सबको 0 जो है वो वैल्यू दे दी है। अब पूरा अरे हमारा 0 से फिल हो गया, हमारा जो अरे है 10 एलिमेंट्स का, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, ये इसके सबस्क्रिप्ट हैं, लेकिन हमने 0 to 9 सब में जो वैल्यू जो है वो 0 सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। Here is a simple program sorry, write a program to add 10 array elements। हमने यहाँ पे अरे के 10 एलिमेंट्स को ऐड करना है। सिंपल, वी हैव एन अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स, नाम हमने उसका रखा है ए डबल आर अरे नेम होगा। 10 एलिमेंट्स का हमने साइज़ डिक्लेयर कर दिया है और उसकी टाइप जो है वो हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि इस ए डबल आर जो अरे है इसमें 10 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो सकती। इंट सम, हमने एक वेरिएबल लिया है सम और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 पे। इसका मतलब ये होगा कि इनिशियली उसमें कोई वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है। फिर हमने क्या किया है कि लूप को हमने स्टार्ट किया 0 से लेके 9 तक। इसका मतलब ये होगा कि लूप हमारी 0 से 9 तक चलेगी, एंटर वैल्यू एन ऑफ एन अरे, और उसके बाद ये होगा कि यस, तो सम हमारा जो है वो 0 पे इनिशियलाइज है। उसके बाद हमने लूप लगाई, लूप 0 से 9 तक। इसका मतलब यह है कि अरे में हमने 0 to 9 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट की। पहली वैल्यू अरे ऑफ 0 पे गई, फिर अरे ऑफ 1 पे, फिर अरे ऑफ 2 पे, फिर अरे ऑफ 3 पे। इस तरह से अरे ऑफ 9 तक हमारी वैल्यूज़ चली गई 0 से 9 तक। अब यह है कि हमने उन्हें सम करना है, तो सम के लिए हमें फिर लूप लगानी पड़ेगी। हमने एक और लूप लगाई जिसमें पहली वैल्यू जो है वो इनिशियली हमने सम को 0 पे इनिशियलाइज़ किया, तो 0 प्लस ए ऑफ 0, जो भी वैल्यू होगी वो सम में ऐड हो जाएगी। फिर सम में नई वैल्यू के साथ ए ऑफ 1 ऐड हो जाएगा, फिर ए ऑफ 2 ऐड हो जाएगा, फिर ए ऑफ 3 ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, तो 0 प्लस 5 5 हो गया, फिर 5 प्लस 10 15 हो गया, फिर 15 प्लस 10 15 प्लस आगे जो है वो आप नई वैल्यू ऐड करेंगे। तो हर प्रीवियस वैल्यू जो है वो नई वैल्यू में ऐड होती जाएगी। जैसे ये 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5, इस तरह से उसमें नई वैल्यू जो है वो ऐड होती जाएंगी। तो ये देखें कि अगर हमने पहली वैल्यू 5 दी है, फिर 10 दी है, फिर 15 दी है, फिर 20 दी है, फिर 25, तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ तक ये हम इनपुट कर रहे हैं। तो तरीकाकार ये है कि ये पहली इसमें ऐड हो जाएगी, फिर ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, फिर ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, फिर ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो अगर आप इनका सम करें तो इनका सम बनता है 275। तो एक्चुअली हुआ यह है कि सम हमने एक वेरिएबल लिया, पहले हमने उसमें 5 ऐड कर दिया, फिर हमने उसमें 10 ऐड कर दिया, फिर हमने उसमें 15 ऐड कर दिया, फिर उसी सम वेरिएबल में 20 ऐड कर दिया। तो सम हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें नई वैल्यू प्लस होती जा रही है। तो पहले 0 प्लस 5 हुआ, फिर 5 प्लस 10 हुआ, फिर 10 प्लस 20 हुआ। इस तरह से सारी वैल्यूज़ एक एक करके लूप के ज़रिए हमने सम में जो है वो ऐड कर दी। तो एट द एंड ऑफ दिस लूप हमारा ये जो सम होगा इसमें ऑल 10 वैल्यूज़ का जो है वो सम आ चुका होगा। तो सम में इन तमाम वैल्यूज़ का सम जाएगा, और उसके बाद जब हम इसको सी आउट करेंगे 10 वैल्यूज़ के सम को डिस्प्ले करवाएंगे, तो जो सम में टोटल वैल्यू होगी, जो एडिड वैल्यूज़ होगी, वो सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी।
तो इस तरह से हम अरे की 10 वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं, एक एक वैल्यूज़ को लूप के अंदर ऐड करते हुए। ये देखें, ये इसका आउटपुट है कि अगर ये हमने वैल्यूज़ दी हैं तो इन वैल्यूज़ को सम में ऐड करते जाएंगे यहाँ तक आपकी लूप चलेगी, और बाद में जब हम सम को डिस्प्ले करवाएंगे तो वो 275 डिस्प्ले करेगा। हाँ जी, ये बात मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी आपने सिंगल डायमेंशन अरे को जो है वो इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप यहाँ पे नंबर बताएंगे कि कितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे 6 एक्यूरेट नंबर आएगा। या फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये होगा कि वो इधर से साइज़ उसका खुद ही देख लेगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं, कंपाइलर उसके मुताबिक अरे सेट कर देगा। तो आप यहाँ पे ये 6 वैल्यूज़ हैं तो या आप यहाँ पे 6 लिखेंगे या फिर इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन ये नहीं आप करेंगे कि यहाँ पे आप 5 लिख दें और इधर वैल्यू 6 दे दें, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आप अरे को इनिशियलाइज करवाएं इस तरह से, तो उसके लिए ये है कि जी आइदर यू कीप इट एज ब्लैंक या फिर एग्जैक्ट नंबर दे दें। ऐसा नहीं होगा कि आप नंबर डिफरेंट दे दें। देख लेते हैं जी। इट इज़ एन ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन कि यहाँ पे आप वो नंबर बता भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 आएगा, और या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नंबर बताया तो इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट, और या फिर आप उसे ब्लैंक छोड़ दें। ओके। जावा में और सी प्लस प्लस में अरे को लेके थोड़े डिफरेंसेस हैं उसकी डेक्लेरेशन में। तो मैंने उसके जो है वो दोनों तरीके आपके सामने रख दिए हैं कि सी प्लस प्लस में तो सिंपल मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा वेरिएशन है जावा में। जो लोग जावा में काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को काइंडली नोट डाउन करें कि इसमें आपके पास या तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, इंट अरे नेम और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर अरे नेम इक्वल टू न्यू। न्यू यहाँ पे कीवर्ड है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो चूंकि आपके पास अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से आप इसे सिंटैक्स समझ लें कि न्यू इसका एक सिंटैक्स है जिसको हमने करना है। तो इसकी डिक्लेरेशन में इंट अरे नेम, आगे ये ब्रेसेस, उसके बाद सेमी कॉलन, और फिर अरे नेम जो भी आपने दिया इक्वल टू न्यू इंट और साइज। साइज से मुराद आपको पता है कि जितनी वैल्यूज़ के लिए आपको अरे चाहिए। या फिर अगर आप इस तरह से 2 स्टेप में नहीं करना चाहते तो एक स्टेप में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इंट, इंट से मुराद उसकी डाटा टाइप, अरे की टाइप। फाउंडेशन कॉन्सेप्ट उसका सेम है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में कोई मसला नहीं है। अरे का मतलब वहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। उसकी डेफिनेशन में सिर्फ सिंटैक्स में जो तब्दीली है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे इंट आगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब जो अरे होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। अगर वो फ्लोट हो तो यहाँ पे आप फ्लोट कर देंगे, अगर करैक्टर हो तो करैक्टर कर देंगे, डबल हो, बाइट हो, जो भी टाइप आप अरे की सेट करना चाहें आप वो यहाँ पे बताएं। आगे उसकी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अरे नेम मीन वेरिएबल नेम जो भी अरे के लिए रखना चाहें इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड है, इसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। एंड इंट, अगर आपने यहाँ पे इंट लिया है अरे तो यहाँ पे भी आप उसे इंट रखेंगे। अगर यहाँ पे फ्लोट लिया है तो इधर भी फ्लोट आएगा, अगर करैक्टर लिया है तो इधर भी करैक्टर आएगा। तो आगे उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपने साइज़ बताना है कि जी हाउ मच कैपेसिटी यू नीड फॉर दिस अरे। अगर 10 वैल्यूज़ के लिए चाहिए तो यहाँ पे 10 लिख दें। इफ़ यू नीड इट फॉर 20 वैल्यूज़ यू कैन प्लेस इट एज 20। इफ़ यू नीड इट फॉर 100 वैल्यूज़ then size is equal to 100. So you have to put a number over here depending upon your requirement. If you need an array of 10 elements then put the number 10 over here. So you have two methods to declare array in Java, either by this method or by this। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो अगर यहाँ पे आप जो टाइप आप यूज़ करेंगे तो उसको ही आपने बताना है। जैसे यहाँ पे आपने अगर इंट रखा है तो इधर भी इंट आएगा, अगर इधर फ्लोट रखेंगे तो इधर भी फ्लोट आएगा, इधर करैक्टर रखेंगे तो इधर भी करैक्टर आएगा। सिमिलरली इन दिस मेथड अगर हमने यहाँ पे इंट रखा है तो इधर भी इंट आएगा। तो चाहे आप ये मेथड अडॉप्ट करें या फिर इस सिंगल लाइन वाले डिक्लेरेशन में आ जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंने ये सेकंड मेथड से यूज़ किया इंट, आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, माई अरे, अरे का नाम था, न्यू कीवर्ड था, इंट, और आगे उसकी थ्री, थ्री उसका साइज़ है कि जी यहाँ पे जो मेरा अरे है माई अरे
जो मैंने डिक्लेयर किया है इसका साइज़ मैंने 3 रखा है। इसका मतलब यह है कि उसमें 3 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो सकते हैं। 3 एलिमेंट्स का अरे मैंने डिक्लेयर किया। और अगेन इसका भी सबस्क्रिप्ट सी प्लस प्लस की तरह ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। आप जावा में हो या सी प्लस प्लस में हो, कीप इट इन माइंड दैट अरे सबस्क्रिप्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. So if the array is of 3 element or for the 3 element, then the subscript would be from 0 to 2, 0, 1 and 2. So here we have an array of 3 element. So the first element subscript would be 0, second element subscript would be 1, the third element subscript would be 2. So in this way, first element would store on 0th position, second element would store on first position, third element would store on second position. So it would start from 0, 1 and 2. Similarly, the elements has been referred to the array. Now you can display the array in this way, like system.out.println. This is your output statement and my array is your array name, and in the square bracket you have to write the subscript of the array. So when you write over here as 0, it means the first element of the array would be present. If you write 1, it means the second element of the array would be there. And if you write 2, it means that third element of the array would be there. So in this way you can display the element of the array. Here is another example. Here we have taken the array of 5 element and we have placed 10 at 0, 20 at 1, 30 at 2, 40 at 3 and 50 at 4. So we have the array of 5 element and we have placed 10, 20, 30, 40 and 50 in this array. Okay, mind it. Similarly, as in C++, we have to write the subscript 0, 1, 2, 3, 4. Subscript would tell that each element is on different position. 10 is on different position, 20 is on different position, 30 is on different position, and with the help of these index number or subscript, you can access or display the values you have stored in the array. So when we have assigned these values, with the help of loop, we can display system.out.println x of n. N is the variable that would represent the subscript of the array. So it starts from 0. The first element that would be displayed x of 0, and x of 0 mean 10 would be displayed. Then x of 1 mean 20 would be displayed. Then x of 2 mean 30 would be displayed. X of 3 mean 40 would be displayed. And x of 4, when x of 4 is there, it means 50 would be referred or displayed. So in this way, if you have more than one values in the array, in that case you should use लूप से काम आप करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आप काम कर सकेंगे. तो फॉर लिमिटेड 4-5 वैल्यूज़ तो आप डायरेक्ट भी उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप लूप को जो है वो अडॉप्ट करें. लूप के ज़रिए आप जो है वो अरे की वैल्यूज़ को रेफ़र करें, इनपुट करवाएं, डिस्प्ले करवाएं, जैसे भी आप काम करना चाहें आप लूप के ज़रिए करें. तो ये जावा में लिटिल बिट डिफरेंट डेक्लेरेशन का था, तो जो मैंने आपको क्लियर कर दिया. तो जब भी आप जावा में अरे को डिक्लेयर करें तो इन दो मेथड्स का आप ख्याल रखें, या फिर इस मेथड से करें 2 लाइन्स वाला मेथड, या फिर 1 लाइन वाले मेथड से करें. लेकिन इसका थोड़ा सिंटैक्स जो है वो C++ से डिफरेंट है. बाकी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है. आपके लिए कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं जी. राइट डाउन द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द अरे इन रिवर्स ऑर्डर. कि अरे में वैल्यूज़ लें और उसे फिर रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करें. कि अगर वैल्यूज़ आपने ली हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, तो जब आप डिस्प्ले करें तो वो 100 से शुरू हो. 100, 90, 80, 70, 60 इन दिस वे अप टू 10. तो वैल्यूज़ जो है वो इनपुट जिस ऑर्डर में, जिस तरतीब से आप करें, उससे रिवर्स ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करें. पहली असाइनमेंट आपकी ये है. दूसरी असाइनमेंट है जी, राइट डाउन द प्रोग्राम टू द लार्जर वैल्यू फ्रॉम द अरे ऑफ 10 वैल्यूज़. आपके पास एक अरे है, थोड़ा मिस्टेकनली यहाँ पे लार्जर लिखा गया, इट मस्ट बी लार्जेस्ट वैल्यू.
कि एक अरे आप लें 10 वैल्यूज़ का और उसमें लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो आपने डिस्प्ले करनी है कि कौन सी है। अगर आपके पास जो है वो अरे 10 वैल्यूज़ का है और लार्जेस्ट वैल्यू उसमें 100 बन रही है तो 100 डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर लार्जेस्ट वैल्यू उसमें 700 बन रही है तो 700। ये वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, उनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट शुड बी डिस्प्लेड। थर्ड असाइनमेंट है जी, राइट डाउन द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। हर एलिमेंट, लेट से आपने 10 एलिमेंट का रे लिया है तो जो डिस्प्ले है वो उसका मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए हर एलिमेंट का। लेट से कि जी आपने एलिमेंट लिए हैं 10 20 30 40 50 अप टू 100, तो डिस्प्ले में जो है वो मल्टीपल ऑफ 2, 10 का मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा 20 होगा, 20 का मल्टीपल 2 क्या होगा 40 होगा, 30 का मल्टीपल 2 क्या होगा 60 होगा, 40 का मल्टीपल 2 क्या होगा 80 होगा, 50 का मल्टीपल 2 क्या होगा 100 होगा। इन दिस वे हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करना है। जो भी आपने एलिमेंट अरे में दिए हैं हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करें। The next assignment, write down the program to display the even values from the given array of 10 values. Over here आपने if you have 10 values तो आपने find out करनी है how much are the even and how much are the odd, and only even values should be displayed. If the array contains some odd values must not be displayed. Only even values should be displayed. Either the array is full of even values, then all even values should be displayed. If it has no value, even value, then no value should be displayed. But if it has 5 values, then 5 values should be displayed. Depending upon the number of even values, only even values should be displayed. Odd values must not be displayed. So my dear student, ये आप लोगों के लिए programming practices हैं. Please try to attempt. In the next lecture I will sort it down and you can compare, but as I have already told you, programming doesn't come with simple listening, rather it is done through practicing. Until or unless you would not do the practice, you cannot be fluent in programming. So to become a fluent in programming you have to do it by yourself. So I will do this for you, but that would be simply a comparison. But until or unless you can't do it for yourself, you cannot be a good programmer. So try to attempt at home. Inshallah, in the next lecture I will provide it the solution of these programs and you can compare those solutions with your homework. Okay gentlemen, thank you very much. Thanks a lot. Allah.